very good morning to all of you. So we were revising practical geometry. From yesterday, your revision test have been started, right? Hope you're studying hard to perform well in the coming exam, right? Offline exam, after so many, you can say months, you will sit in offline exam. So for that, you will be confident only when you are giving your revision test with hard work and practice, right? Chaliye. So we were doing 10.4 exercise. Let us start with question number second. 10.4 question number second. Question number second of construction 10.4. Construct a triangle PQR in which PQ is equal to 5 centimeter. PQ is equal to 5 centimeter. Angle PQR is equal to 105. Angle PQR is equal to 105 degree. And angle QRP is equal to 40 degree. Whenever it is a matter about two angles, जब भी हमें two angles लिए हो, first of all आपने angles का जो center letter हमें given है उसको ध्यान से देखना. It is Q, it is R. That means indirectly we have realized that in this question angle Q and angle R are given. Q and R हमें given है, right? और जो साइड गिवन है उस पे कौन से पॉइंट है? P and Q. But I told you when we are applying ASA rule, then the side which we have to draw, जो साइड हमें ड्रॉ करनी होती है उसके एंड पॉइंट्स वाले एंगल जो है वो हमारे पास होने चाहिए. इसके एंड पॉइंट पे P and Q है. That means we should have angle P with us. We should have angle Q with us. Angle Q is with us, but angle P is not with us. Angle P हमारे पास नहीं है. So first of all, to realize this shortcoming, we will firstly find angle P using angle sum property of triangle PQR. पहले तो आपको ये पता चल जाना चाहिए क्वेश्चन देख के कि मुझे कौन सा एंगल चाहिए. I need angle P as well as angle Q. मुझे P and Q दो एंगल्स चाहिए, बट यहाँ पे एंगल Q and R गिवन है. तो इसका मतलब how to find P? We will use angle sum property to find angle P. So we will write in triangle PQR, angle P plus angle Q plus angle R 180 degree angle sum property. Angle sum property. P plus Q plus R is equal to 180. This is angle sum property. Now, Vitarthi, what is the value of angle P? Angle P, मास उतारते बोलो. एंगल P की वैल्यू 5 सेंटीमीटर. लाउडली बोलो थोड़ा. Stand up and speak. What is the value of angle P? P की वैल्यू P इक्वल टू 5. P क्यू 5 सेंटीमीटर. मैं एंगल पूछ रही हूँ, मैं लाइन सेगमेंट नहीं पूछ रही. P की वैल्यू क्या लिखूं? आप बताओ. What should be P? This curl. बच्चे, what's your name? क्या नाम है? हरमनप्रीत. हरमनप्रीत, P की वैल्यू क्या लिखे?
आप बताओ राजार्यन। अवनीत, पी की वैल्यू क्या लिखें बच्चे? अभी तो मैंने बताया कि पी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, हमें सिर्फ एंगल क्यू एंड एंगल आर गिवन है। आपको भी भूल गया, पेपर में कैसे करके आओगे फिर? पी की तो कोई वैल्यू लिख ही नहीं सकते, वो पी आएगा, उसकी वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं। चलो मितार्थी, मुझे क्यू की वैल्यू बता दो आप। क्यू इज 5। बेटे एंगल की वैल्यू तो भी सेंटीमीटर्स में होती है, एंगल की वैल्यू तो डिग्री में होती है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू, एंगल क्यू? 105 डिग्री। Harmanpreet, what is the value of R? R is 40 degree. This becomes angle P plus 145, 180. So angle P is 180 minus 145. Angle P is equal to 35 degree. So हमारे पास जो एंगल P है हमारा वो 35 डिग्री आ गया। नाउ जो ट्राइंगल हमें कंस्ट्रक्ट करना है उसकी जो साइड हमें गिवन है दैट इज PQ। तो आई नीड एंगल P एज वेल एज एंगल Q। Q एंगल मेरे पास था और P मैंने क्या किया, फाइंड किया। इस प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करके बोलो? विच प्रॉपर्टी आई हैव यूज्ड? Angle sum property we have used and we have find angle P. First of all I will make rough sketch. यहाँ बनाती हूँ। Firstly line PQ will be drawn. At Q it will be 105 degree and at P it is 35 degree. उधर P है तो पहले P की वैल्यू लिखनी चाहिए थी। At P it is 35 degree and at Q it is 105 degree. जो आपके पास जो गिवन साइड है उसके एंड पॉइंट्स हैं, आपके पास वो वाले एंगल्स पड़े होने चाहिए। अगर इस लाइन का सेगमेंट का एंड पॉइंट P है, you should have angle P. Its end point is Q. You should have angle Q. That means in this question indirectly we should have angle P and Q that we are having. हमारे पास एंगल P and Q होने चाहिए थे जो कि हमारे पास हैं। चलिए let us start with the fair sketch. Draw PQ equal to 5 centimeter. PQ is equal to 5 centimeter. Angle P is 35 degree and 35 is it multiple of 15? 35 15 के टेबल पे आता है? 15 के टेबल में 35 आता है नहीं ना? तो इसका मतलब 35 कैसे बनेगा? कंपास से के या प्रोटेक्टर से? कंपास से कैसे बन जाएगा? कंपास से सिर्फ वही बनेंगे जो 15 के टेबल में आएंगे। 35 15 के टेबल में नहीं आ रहा तो किससे बनेगा? बोलो, प्रोटेक्टर से। Keep the protector center at point P. We want to draw. Please hand down. I know that you are giving. You have raised the hand for giving the answer. Hand down कर लो अपने. Jasmine, Harman, Devang. Please hand down. You have raised the hand for giving the answer. I know. ठीक है. Now I told you that acute angle 35 it should be inward direction. And how to see the inward and outward direction? The direction जो साइड वाली लाइन वाली साइड पे होगी वो इनवर्ड होगी और डायरेक्शन जिसमें कोई लाइन नहीं है हमारी वो आउटवर्ड होगी। दिस इज आउटवर्ड डायरेक्शन, इधर लाइन नहीं है।
जिस साइड पे हमारी लाइन है वो इनवर्ट डायरेक्शन है। 35, 30 के बाद 5 लाइन्स, दिस गिव यू 35। Angle P is 35. Now you have to draw angle Q to be 105 degree. हमें angle Q जो है वो 105 डिग्री ड्रॉ करना है। Now 105 is it a multiple of 15? 105 15 के टेबल में आता है? Those who are sitting over here, let me know. 15 के टेबल में 105 आएगा। 15 7 जा 105। और जो एंगल 15 के टेबल में आ गया उसको किससे बनाते हैं? कंपास से। देखो जरा बोर्ड की तरह देखो, 15 कैसे बनेगा, 105 कैसे बनेगा। जो मेरा 105 डिग्री है ये दो एंगल्स के बीच में लाई कर रहा है जो मुझे बनाने आते हैं। बता सकते हो 105 किससे बड़ा है और किससे छोटा है? दो ऐसे एंगल जो हमें आते हैं। 90 से बड़ा है 180 के अलावा, 180 के अलावा कोई और एंगल जो हमें आता भी हो और जो थोड़ा छोटा भी हो 120। शाबाश 120। तो मितार्थी ने बता दिया बड़े अच्छे से कि जो 105 है वो हमारा 90 एंड 120 के बीच में आता है। इसका मतलब 105 बनाने के लिए हमें 90 एंड 120 बनाना पड़ेगा। 120 एंड 90 जो हैं वो हमारी हेल्प करेंगे 105 बनाने के, राइट? 90 एंड 120 दे विल हेल्प अस टू रीच 105। कैसे? लेट मी टेल यू। सबसे पहले आपने कंपास की हेल्प से 90 एंड 120 कंस्ट्रक्ट कर लेना है। सबको आता है 90 एंड 120, कल भी हमने सीखा था। चलो शुरू करो बनाना। $90 एंगल and 105 degree angle. First of all, I am making 90 degree arc. अच्छा बोर्ड की तरफ देखना सारे, ये 60 है तो ये कितना है? पहला आर्क 60 का होता है, दूसरा आर्क कितने का होता है? फर्स्ट इज 60, पहले 60 बनाया, ये 60 का हो गया, एक 60 और किया, टोटल कितना हो गया? 120। दूसरा आर्क 120 का है, 90 बनाए। अब 90 एंड 120 वो हमारी रिक्वायरमेंट के एंगल, हमारे ट्राइंगल के एंगल्स नहीं है, दे आर जस्ट हेल्पिंग अस। 90 एंड 105 दे आर जस्ट हेल्पिंग अस, सो हम इसको डॉटेड लाइन में बनाएंगे। दिस इज 90 डॉटेड लाइन, $120 dotted line. Because why I am making them in dotted line form? Only because they are just helping me. They are not the actual angles of the triangle. वो सिर्फ हमारी help कर रहे हैं. They are just helping us. That's why I made them in dotted. हमें कितना चाहिए? 105 डिग्री. This is 90. This is 120. 90 और 120 के बीच में कितना आएगा? 105. 90. अब मुझे ये बताओ ये वाला आर्क कितने डिग्री का है? 90 और 120 के बीच में कितने डिग्री का आर्क होगा? मुझे ये बताओ 90 और 120 के बीच में कितने डिग्री एंगल बैठा हुआ है? हरमनप्रीत
90 एंड 120 के बीच में कितने डिग्री एंगल बैठा हुआ है? अगर आपसे कोई पूछे 90 और 120 के बीच में कितना गैप है विद्यार्थी? एक नंबर है 90, दूसरा नंबर है 120, कितना गैप है दोनों में? दोनों में डिफरेंस कितना है? कितना आएगा? कितना डिफरेंस आएगा? करो माइनस। टेल मी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। 90 एंड 120 के बीच 30 डिग्री। इसका मतलब लुक एट द बोर्ड, इसका मतलब ये आर्क कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। मैंने जहां पे स्टार्टिंग बिंदी लगाई है 90 पे, एंडिंग बिंदी लगाई है 120 पे, दोनों के बीच में कितना गैप है? तो ये छोटा सा कितने डिग्री का हुआ? 30 डिग्री। ये हमारा 90 है। इस 90 को अगर मैं 105 बनाना चाहूं तो मुझे इसमें कितने ऐड करने पड़ेंगे? 90 को 105 बनने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा उसमें? 15। इसका मतलब 90 ने साथ वाले 30 को बोला कि मुझे 15 रुपीज उधार चाहिए। 90 ने साथ वाले 30 को बोला कि मुझे 15 रुपीज उधार चाहिए, मैंने अपनी वैल्यू को 105 बनाना है। तो कल मैंने आपको बताया था कि एंगल को आधा कैसे करते हैं। 13 ने अपने में से 15 यानी कि आधा देना है। कैसे करते हैं किसी एंगल को आधा? जो ये हमारा 30 है, इतनी कंपास खोलो 30 जितनी, एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट पे रख के ओपन दिस मच कंपास, कीपिंग द नीडल and chalk at ending and starting point, open this much compass. एक बार starting point पे रख के आप ऐसे और एक बार ending point पे रख के आप ऐसे. Make an arc by keeping the needle at starting point and make an arc by keeping the needle at ending point. इस तरह से हमने 30 को दो हिस्सों में बांट दिया। देखना जरा, ये था 90, ये था 30। 30 ने अपने में से 15 को 90 को दे दिया। 30 ने 15 हिस्सा 90 को दे दिया, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया? 105. This total angle after taking 15 from 30 degree, it becomes 105 degree. 90 plus 15 becomes 105. Now, if you want to see whether your construction is correct or not, you know that angle R was 40 degree. You find the measure of angle R. Protector को रखो यहाँ पे angle R पे. R पे प्रोटेक्टर का सेंटर और R वाली लाइन पे प्रोटेक्टर की स्ट्रेट लाइन, इट शुड बी 40 डिग्री. माइन इज 40 डिग्री. यू चेक योर्स, चेक करो अपना. गौरीश इज गिविंग रिएक्शन, 40 डिग्री इज देयर. हाँ जी, दोज हु आर सिटिंग ओवर हियर, विद्यार्थी दिखाओ क्या किया. R should be 40 degree after you are checking it with the help of the protector. आप नहीं बना रहे हो फर्स्ट सेंस. कंपास कहाँ है आपकी? कहाँ बनाया? दिखाओ. R should be 40 degree. Yes, Shubh, you want to ask something? No, ma'am. फिर हैंड डाउन करो अपना. हरमीत सिंह. Yes, मैम एक बार कंस्ट्रक्शन ऑफ 180 डिग्री मैम एक बार कंस्ट्रक्शन ऑफ 80 डिग्री करा देना. कंस्ट्रक्शन ऑफ मैम 80 डिग्री. 80 डिग्री वो तो प्रोटेक्टर से बनना है. प्रोटेक्टर से 80 डिग्री बनाना नहीं आता आपको?
परमीत यस मैम। नहीं आता? मैम परमीत आता है फिर मैम। फिर फिर क्या बताऊं आपको? 80 डिग्री तो आपको आता है प्रोटेक्टर से। पता नहीं आप क्या पूछना चाह रहे हो। चलिए लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. Examine whether you can construct DEF, triangle DEF, with EF is equal to 7.2, EF is equal to 7.2, angle E is equal to 110, and angle F is equal to 80 degree. With this information, can we construct a triangle? This is the question. कि हम इस given information के साथ कोई triangle construct कर सकते हैं कि नहीं? Those who are sitting in the class, can they give the answer? Any one of you? Yes, yes. Hurry up, think about. विद्यार्थी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हम ट्रायंगल इस इंफॉर्मेशन के साथ? यस. राज हरियन सेइंग नो. रीजन? Because when we add these two angles, the sum will come out to be 190. जब हम इन दो एंगल्स को ऐड करेंगे सम 190 हो जाएगा, जबकि हमारे पास तो 3 एंगल्स का सम 180 होता है. तो यहाँ पे तो 2 बाई 180 से ज्यादा हो गया. तो कर सकते हो कंस्ट्रक्ट? नहीं ना. 100 एंड फिर भी 2 का सम 180 थोड़ा होता है, 3 का सम 180 होता है. 2 का सम 180 से स्मॉलर होना चाहिए तब हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. हम कैसे लिखेंगे? हियर E plus F 110 plus 80 190 which is more than 180. So we can't construct the triangle with given information. We can't construct the triangle with given information. Given information के साथ आप जो triangle है वो construct नहीं कर सकते हो. Reason is sum of 2 angles ही 180 से ज्यादा आ रहा है, जबकि हमारा 3 angles का sum equal to 180 होता है. So it's not possible to construct a triangle with these given information, right? चलिए. Now come to 10.5 exercise in which RHS rule we will apply to construct a triangle. Let me tell you what is the meaning of RHS rule. RHS rule of congruency. RHS rule of congruency. RHS का Karthik, you want to ask or you want to tell? If you want to tell, then hand down because मैंने explain करना. Hand down who just want to tell because it's time to explain by my side. Yes, Karthik. Not audible. Yes, Shubh. यस मैम. मैम आप एक बार एक्सरसाइज 10.1 का थर्ड सम रिपीट करा दोगे? जैसे 10.5 खत्म करेंगे एंड में करवाऊंगी. ठीक है? ओके मैम. थैंक यू. देवांग.
मैम एक बार 105 का एंगल दोबारा समझा दो मुझे ना, मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। समझा? Devang, you be unmuted and I will ask some questions from you. Devang. Devang, Yes, ma'am. 105 का एंगल, कोई ऐसे दो एंगल्स बताओ जिनके बीच में लाई करता हो और जो हमें बनाने आते हैं। किन दो? मैम हाँ बोलो। 90 एंड 120 एंड 120। 90 एंड 120 के बीच हमारा 105 बैठा। ठीक है, मैं रफली बता देती हूँ। ये हमारा कंपास ऐसे हुआ, ये 90, ये 120। इतना तो आता है ना दिमाग? यस मैम। मैम बाकी का एंगल आता है। यहाँ पे 90 भी आता है आपको? यस मैम। ये 90 है, ये 120। दिवांग, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस आर्क? ये कितना एंगल होगा? 90 एंड 120 के बीच में कितना एंगल होता है? अगर मैं किसी से पूछूं कि ये एंगल कितना है, तो व्हाट यू विल से? मैम 30। 90 एंड 120 के बीच में 30। अब इस 30 में से हमें 90 वाली लाइन को 15 देना है। इसका मतलब हमें इस 30 को हाफ करना है। तो मैंने आपको कल बताया था कि एंगल को हाफ कैसे करते हैं। जिस भी एंगल को हाफ करना हो उसके स्टार्टिंग और एंड पे 2 डॉट्स लगा दें ऐसे। अब इस एंगल के जितनी कंपास खोल लेनी है। ठीक है, खोल ली। अब एक बार इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे रख के आप इसके एंडिंग पॉइंट पे रख के आओ। इस तरह से 30 ने आधा होके 90 को 15 हिस्सा अपने में से दे दिया। 30 ने 15 अपने में से 90 को दे दिया। तो ये 90 था, ये 15 है, मिलके क्या बन गया? 10। इज इट ओके देवांग? यस मैम। Now we are moving towards next rule. Next rule of congruency, no, that is RHS rule. हमारे फर्स्ट डिवीजन टेस्ट का सिलेबस है आई थिंक रैशनल नंबर्स, एक्सपोनेंट एंड पावर्स एंड प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। उसमें से हमने रैशनल नंबर्स एंड एक्सपोनेंट एंड पावर्स पहले कर लिए थे। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री वी आर डूइंग नाउ। अगर तो कल तक हो गया तो हमारे पास जो भी दिन रह जाएंगे 1-2 दिन, मुझे लगता है मैंने आपको रैशनल नंबर्स के वो भेज दिए हुए थे एमसीक्यूज। एक्सपोनेंट एंड पावर्स के एमसीक्यूज भेजे मैंने, एक्सपोनेंट एंड पावर्स के। मैम आपने ना इकट्ठी भेजी, मैम आपने इकट्ठी भेज दिए थे दोनों के। कैसे कैसे दोबारा बोलना? मैम आपने इकट्ठी एक पीडीएफ में आपने दोनों के एमसीक्यू मैम डाले हुए थे। एक्सपोनेंट एंड पार्ट्स के भी उसी में थे रैशनल नंबर के साथ ही? यस मैम। बच्चे कह रहे हैं नहीं, मुझे चेक करना पड़ेगा। अगर नहीं थे तो हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की। चलो आरएचएस रूल बताती हूँ भैया। RHS rule means when we are constructing a triangle, we are given a right angle, a hypotenuse, and one side. Right angle, hypotenuse, and side. राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड, ये चीजें हमें गिवन होनी चाहिए टू कंस्ट्रक्ट द राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री। अब एक मिनट मुझे ये एक बात बताओ, अगर हमारे पास एक ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री है तो मैंने आपको बताया था, अभी आप करोगे नेक्स्ट चैप्टर में, ट्राइंगल में जो तीनों साइड्स होती हैं राइट एंगल ट्राइंगल की, उनका एक स्पेशल नेम होता है। ठीक है, जो यहाँ पे बैठी होती है नीचे, जैसे कि हमारे नीचे यहाँ पे अर्थ है, इसको हम बोलेंगे बेस। एंड आई एम परपेंडिकुलर टू द बेस, दिस विल बी परपेंडिकुलर।
और जो 90 डिग्री के सामने होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज. So side which is opposite to 90 degree is known as, बोलो, hypotenuse. We'll continue tomorrow.